Hi everyone. So today we have Rishabh with us. Rishabh has achieved All India rank 16 in GATE D 2025, and Rishabh is our course enrolled student. He has enrolled in multiple courses. Basically, he has enrolled in individual courses. So welcome Rishabh, and congratulations for your top rank. Yes, sir. Thank you. It's a great honor to be talking to you. इससे पहले आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डिंग में देखा है और अभी ये जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो इट्स फीलिंग एज इफ कोई लेक्चर शुरू हो गया है। वैसे एक दो महीने से ज्यादा हो गया मुझे कोई भी वीडियो देखे, लेकिन जैसे ही आपने सेम स्टाइल में आपने शुरू किया, सो वही बात है, Okay. आप जो बोलते हो स्टैंडर्ड बात है। आई थिंक इट्स ओके, आई थिंक वी कैन गो फॉरवर्ड ऐसी। सो ऐसा लग रहा है फिर से कोई क्लास चालू हो गई है। एक्चुअली बट आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1x पे क्लास है, क्योंकि आप जनरली हो सकता है 1.5 पे देखते हो, तो मैं वो हाँ, डिफरेंस मैं 2x पे देखता था। 2x पे क्योंकि है। तो ओके. ये So, Rishabh, would you like to introduce yourself? Like currently you are working, or you are, you are in your fourth year, or what is your, BTech stream, and everything about you? Would you like to introduce? yes, my I'm Rishabh Mishra. So I did my bachelor's from IIT Varanasi in ceramic engineering. I completed it back in 2020, and for last 4.5 years I have been working in software. Um, Last year I thought of basically I wanted to. I thought that I was very much passionate about data science, artificial intelligence, and not because it has become a trend, a buzzword right now, but even before that, when the AI wave came, even before that, I was very much interested. But somehow I was not able to break into the roles. The roles are there: data scientist, applied scientist. So somehow I come from a non-CS background, so that was a challenge along with that. Either you have to have a CS background from a top tier college, or a 3 to 5 years of experience, some kind of data analyst, data science experience, and I did not have both. So somehow I decided that I need to have a degree which is based on AI, data science, something machine learning. So I did some search. I did India mein what is the best we can get. Uh, and then I came to know that IISc, IIT Madras, they are offering good courses, and you have to appear for an exam, GATE exam, to get into IISc and IITs. But something which was slightly more surprising for me was that I came to know that they have introduced a DA paper, so I don't have to go about and study CS, क्योंकि अगर CS पढ़ना पड़ता थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि अनफेमिलियरिटी ज़्यादा थी। ऑपरेटिंग सिस्टम, TOC, DBMS, ये सब बहुत ज़्यादा अनफेमिलियरिटी होती। बट व्हेन आई लुक्ड इनटू द DA syllabus, I felt that I know these topics. कंसेप्ट नहीं पता है, बट 70% ऑफ द टॉपिक्स आई एम फेमिलियर विद एटलीस्ट। कुछ आता नहीं है उसमें, but I think this is so that's when I decided that I'll go ahead and I'll give appear for GATE DA, and I started एक महीना डिसाइड करने में लगा कुछ। once I decided, then I thought I'll go ahead with uh, uh, and I started my preparation in sometime around August में full flow में preparation I start. Okay, awesome. So, currently you're working? No, I'm not working, I quit my Oh, job. okay. So, got it. So basically आपका इंटरेस्ट पहले से ही था, as you are saying, even when like that AI wave came. So, और even गेट डीए नहीं आया था उससे पहले से ही आपका इंटरेस्ट था, एंड गेट डीए केम एट द राइट टाइम, आई कैन से. Yes, it came at the right time and it was surprising. Almost ऐसा लगा कि शायद मेरे लिए ही आया है। And I had done some very good projects back in 2019, 2020. मैंने उस समय I think मैंने एक फेस रिकग्निशन एल्गोरिदम बना लिया था यूजिंग डीप वाह. लर्निंग टेक्निक्स। तो वहां से जब वो कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा मैंने एक उसमें ये बनाया था। और ऐसा नहीं कि कोई ट्रेनिंग लिया, कुछ ऐसे ऐसे ही अलग अलग जगह से जोड़ के कंसेप्ट समझ के मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया था।
तो इट कुड रिकॉग्नाइज फेस, लाइव वीडियो से फेस लेके उसको रिकॉग्नाइज करके रिकॉग्नाइज कर सकते। मुझे लगा कि यार दिस इज समथिंग रियली गुड। उसके पहले लगता था कि ये फोन में जो सॉफ्टवेयर है फेस रिकॉग्निशन कितना मुश्किल होता होगा ये वो, बट जब वो खुद से कर लिया तो लगा कि यार ये दिस इज समथिंग डीप लर्निंग मशीन लर्निंग ये कुछ तो है। तो वहां से एक मोटिवेशन मिला कि ओके दिस इज समथिंग और ये मुझे पसंद है। हम्म। बट फिर वो चीज रह गई, और अब जाके जब मौका मिला वो एक्सप्रेस करने का, फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली, तब मैंने बीए, एंड दिस वाज मच बिफोर चैट जीपीटी एंड ऑल दैट, एआई वेव, एआई का बज से बहुत पहले था। सो एक पैशन था हमेशा से डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So, how was your, reaction, or how was your excitement when you got to know your marks? Like कि इतने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि पहले रेस्पॉन्स शीट आती है ना, उसके बाद यू गेट टू नो योर रिजल्ट, आई मीन आफ्टर सम टाइम। सो जब आपको अपने मार्क्स पता चला और प्रेडिक्टर पे आपने, आई होप आपने देखा होगा, तो प्रेडिक्टर पे जब आपको ऑलमोस्ट श्योर हो गया कि यार प्रेडिक्टर इज नाउ ऑलमोस्ट स्टेबल एंड इट शुड बी विद इन एटलीस्ट, इन वर्स्ट केस इट विल बी विद इन एटलीस्ट 30, है ना, या फिर 20। तो आपको कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे? सर ऐसा था कि पहली बार जो कल जो रिजल्ट आया है उस पे तो मुझे कुछ ऐसा रिएक्शन ही नहीं है। आप सब रैंक वैंक तो आप सब बता ही देते हो, तो आदमी फिर वो माइंडसेट पे रहता है तो उसको हाँ। कुछ सरप्राइज नहीं होता। सरप्राइज तब होगा जब प्रेडिक्टेड 10 है और आ रहा है 100, तब हाँ, उसको सरप्राइज नहीं शॉक लगेगा। शौक लगेगा। तो आपका जो रैंक प्रेडिक्टर है उससे पहले ही पता चल गया था, कुछ 12 मेरा ऐसा रैंक आ रहा था बट एक्चुअल 16 आया। सो वहाँ मोर और लेस पता चल गया था। मैंने मार्क्स इवेलुएट किए थे एक्चुअली। मैंने पेन पेपर लेके एक एक क्वेश्चन जाके मैंने मार्क्स इवेलुएट किए थे। ओके, प्रेडिक्टर पे नहीं डाला था। नहीं डाला था तभी। ओके। तो मेरा कुछ ऐसा आ रहा था 78.33। सो देन आई थॉट ठीक है ये तो ठीक है, बट रैंक कैसे पता करें। थोड़ा हम्म। सर्च किया तो गो क्लासेस का रैंक प्रेडिक्टर मिल गया। अब उसमें देखा कि आप लिंक डालो और वो सब कुछ कर लेता है। हाँ। और ना आपको अपना ना अपनी ईमेल आईडी देने की जरूरत है, ना पासवर्ड, ना कुछ। आप बस अपना वो रिस्पॉन्स शीट का यूआरएल डालो, वो आपको सब कुछ कैलकुलेट करके बता देगा। तो जब उस पे यूआरएल डाला रिस्पॉन्स शीट का तो उसने मार्क्स भी एग्जैक्ट कैलकुलेट कर दिए 78.33। देन आई गॉट कन्विंस दैट दिस इज अ वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर। बहुत पावरफुल इन्होंने दे हैव डिजाइन दिस विद वेरी गुड रैंक प्रेडिक्टर। सो उस पे आई वाज गेटिंग सम 12 रैंक। पहले तो 4 आ रहा था, फिर बाद में कुछ रीएडजस्टमेंट हुआ, उसके बाद 12 हो गया। सो उधर रफली पता चल गया था क्या आना है, फिर मैंने घर पे भी बता दिया। तो जब रिजल्ट कल आया तो मैं मेरे पापा देवर टोटली नॉट सरप्राइज्ड। कोई ऐसा नहीं था, राइट। देवर वेरी काम कि हाँ ठीक है आगे आ गया तो क्या हुआ। मम्मी बहुत खुश थी, शी वॉज वेरी एक्चुअली प्रेडिक्टर ऑलरेडी, सारा सस्पेंस रिवील कर ही देता है, तो फिर उसके बाद हैप्पी। इतना कुछ बचता नहीं है सरप्राइज के लिए। बट हाँ, खुशी तो होती है जब प्रेडिक्टर पे ही पहली बार अपने मार्क्स देखते हैं, या फिर आपने कैलकुलेट किए थे मैनुअली, या फिर पहली बार जब अपने मार्क्स पता चलता है तब लगता है कि हाँ यार, मतलब आई डिड समथिंग गुड। हाँ मार्क्स तो ठीक है, मार्क्स रेफरेंस नहीं पता चलता, रैंक पता चलती है वो में होता हाँ। है। राइट। फिर पता चलता है अच्छा मैंने जितना खराब किया सबने उतना ही खराब किया है, मैंने जितना अच्छा किया सबने उतना ही अच्छा किया है। उतना तो अच्छा नहीं किया, रैंक सबने उतना अच्छा नहीं किया। Got it. So, from which subject you started? So, by the way, you told like you are non-CS background, but I think you haven't told कि मतलब कौन सा आपका background था, कौन से stream था? सेरामिक अच्छा, इंजीनियरिंग हमने बताया था। डिपार्टमेंट। ओके, ओके। या गॉट इट। सो आपने आपको एमएल में ऑलरेडी इंटरेस्ट था, जो आपने बताया, बट आपने जब गेट डी की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो कौन सा पहला सब्जेक्ट था जिससे आपने स्टार्ट किया? आई थिंक मैंने सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा से शुरू किया था। ओके। पहले एक्चुअली मैंने हर सब्जेक्ट को दो दो रिसोर्सेज से पढ़ा है एक्सेप्ट एमएल। ओके। तो एमएल को छोड़ के सारे रिसोर्सेज मैंने दो दो जगह से पढ़ी है। और पहली जगह कुछ समथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, बट दूसरी जगह है गो क्लासेस। ओके। तो पहले मैंने लीनियर अलजेब्रा किया बट आई डेंट फील, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं आया। सो देन आई वेंट ऑन टू डू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। वो भी मैंने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जो यूट्यूब पे है, एमआईटी प्लेलिस्ट है, वो किया। उसके बाद डीएसए मेरा प्रिपेयर्ड था पहले से ही, हम्म। सिंस प्लेसमेंट्स के समय किया हुआ था, तो डीएसए सबसे लास्ट में मैंने किया था।
प्रोबेबिलिटी के बाद आई वेंट ऑन टू मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आई डिड फ्रॉम स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जो ऑनलाइन अवेलेबल है। मशीन लर्निंग के बाद आई डिड डीबीएमएस, वो किसी और रिसोर्स से किया। जो रिसोर्स से मैंने किया था वो अच्छा था, बट डीबीएमएस करने के बाद देन आई डिड आई थिंक एआई किया, और फिर कैलकुलस, और फिर डीएसए, डीएसए फिर कैलकुलस, ऐसे। तो ये सब मैंने एक बार कर लिया था, बट लीनियर अलजेब्रा मेरा ठीक से नहीं हुआ था, बाकी सब ठीक से हो गए थे। तो मैंने सोचा अभी क्या करूं, लीनियर अलजेब्रा हाउ डू आई डू इट। तो मैं देखा गो क्लासेस से फ्री रिसोर्स अवेलेबल है, और मैंने फिर शुरू कर दिया। मैंने देखा पूरा, मैंने देखा काफी डिटेल्ड है इसमें डिस्क्रिप्शन, और कुछ 80-70 घंटे का था। और टाइम मेरे पास कम था क्योंकि बहुत बाद में मैंने शुरू किया था, तो मैंने 2x में वीडियोस देखना चालू किया। और आई थिंक इससे अच्छा लीनियर अलजेब्रा मैंने कहीं ही नहीं पढ़ा है, ना मैं पढ़ पाऊंगा। थैंक यू सो मुझे, मच। आई मीन आपने जिस तरह से एक एक मतलब, एक चीज होती है पढ़ना, एक चीज होती है लिखना, बट जब आपके माइंड में एनिमेशन प्ले होने लग जाए ना, तब आपको समझ आना चाहिए कि आपने अलग लेवल का प्रिपरेशन किया। और वो लीनियर अलजेब्रा के उससे मुझे हो गया था। पूरा कॉन्फिडेंस है। ज्योमेट्रिक या ज्योमेट्रिक इंट्यूशन आ गया था। एंड आई थिंक बहुत लोग जिन्होंने नहीं किया है गो क्लासेस से, उनसे मैंने बात की, वो बोलते हैं कि लीनियर अलजेब्रा उनका थोड़ा सा दिक्कत हो गया। somehow दे आर सेइंग दैट डीएमए इस बार लीनियर अलजेब्रा टफ आया था, जो कि मुझे नहीं लगता कि टफ था। तो मैंने बोला यार ये तो बड़ा इजी था। तो फिर मुझे समझ नहीं आया जब उन्होंने ऐसा बोला, तो फिर उन्होंने बताया उन्होंने कहाँ से प्रिपेयर किया है। सो देन आई वाज लाइक ओके, मैंने गो क्लासेस से किया है, शायद इसीलिए वो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि मेरा लीनियर अलजेब्रा फुल, आई गॉट फुल मार्क्स इन लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चंस। सीरियसली? इन गेट डी दिस ईयर? मतलब, या मतलब जो क्वेश्चंस थे लीनियर हाँ अलजेब्रा हाँ के। हाँ हाँ। ओ यस वाओ, यस। नाइस नाइस नाइस। दिस रियली नाइस इन्फॉर्मेशन टू शेयर। ओके। या अमेजिंग, क्योंकि एले सच सो में टफ था। सब। पहले टफ था क्या? हाँ, एले सच मुझे, में टफ था इस बार। आई बट मीन आपके मैं बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में मेरे बहुत खराब मार्क्स आए थे लीनियर अलजेब्रा में, तो मैंने तो एकदम जीरो से प्रिपेयर किया था लीनियर अलजेब्रा, और जो मैंने कोर्स किया था सबसे पहले वो भी उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो जो गो क्लासेस का किया मैंने, मैंने बोला यार बस अब कुछ नहीं चाहिए। एंड गो क्लासेस का जब मैंने एलए कर लिया ना, तब मैंने सोचा अच्छा, लीनियर अलजेब्रा इतना अच्छा है तो बाकी सब कितना अच्छा होगा। फिर वो लालच आ गया मन में। फिर हाँ। एकाएक मैंने डीबीएमएस कर लिया, और डीबीएमएस जब किया तब तो मतलब फिर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स कर लिया। मतलब एक एक चीज 2 बार पढ़ ली जबकि जरूरत भी नहीं थी। एआई भी मैंने, एआई मैंने बाकी रिसोर्सेज से किया हुआ था, तो एआई नहीं किया, टाइम भी नहीं बचा था। बट एक के बाद एक लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, और फिर बट डीबीएमएस आपने, इतना अच्छा। आई थिंक एनरोल सबसे पहले आपने एआई में ही किया था क्या? एनरोल या प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आपने नहीं, एनरोल किया था? एलए खत्म किया एलए में आपने? एलए किया था मैंने, और फिर जो फ्री है। प्रोबेबिलिटी में किया मैंने, हाँ प्रोबेबिलिटी खत्म किया। वो भी 2x में वीडियो देख के। फिर उसके बाद डीबीएमएस किया मैंने। हाँ, डीबीएमएस आपने हाँ, एनरोल किया था। दीपक सर डीबीएमएस पढ़ाते हैं, और इतना अच्छे से पढ़ाते हैं दीपक सर की, मतलब कौन, उलमान, उलमान वो जो नवाथे। यस। नवाथे, सब जगह से ईमेल्स तक जो सर ने बात किए हुए हैं नवाथे सर से, उनसे वो कॉन्वर्सेशन इतना डिटेल में जाके, बाल एकदम एकदम माइन्यूट में जाके कोई पढ़ाता है। तो यू आर नॉट ओनली प्रिपेयर्ड फॉर गेट डी, यू आर एक्चुअली मोर देन प्रिपेयर्ड फॉर गेट डी। सो डीबीएमएस में भी आई गॉट फुल, जो, और वाह। नॉट इवन इवन द फाइनल एग्जाम, बट ऑल्सो इन द मॉक टेस्ट जो थे, हाँ। उसमें मुझे हमेशा डीबीएमएस में, मतलब डीबीएमएस, जब मैंने सिलेबस देखा था तो मुझे लगा यार ये डीबीएमएस के बारे में कुछ नहीं पता मुझे, बड़ी दिक्कत होगी। बट आफ्टर प्रिपेयरिंग फ्रॉम गो क्लासेस आई वाज लाइक सबसे पहले जाओ डीबीएमएस अटेम्प्ट करो, फिर बाकी क्वेश्चंस देखो, क्योंकि वाह। डीबीएमएस में सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। मतलब गॉट योर गल पॉइंट। हाँ, मतलब यू आर हाईली कॉन्फिडेंट कि हाँ, ये या हो तो जाएगा, समझ में आ गया था अच्छे से। और मॉक टेस्ट में भी डीबीएमएस करते करते उसमें हमेशा डीबीएस में हाँ। कोई दिक्कत नहीं आती थी। कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए थे डीबीएमएस। ऑसम। ऑसम। तो आपने सबसे पहले एलए किया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, उसके बाद डीबीएमएस, एंड देन यस, यू एनरोल्ड इन एआई आल्सो। एआई ऑल्सो मैंने बोला कर ही लेते हैं एआई। फिर एआई का मैंने सिर्फ प्रोपोजिशन और प्रेडिकेट लॉजिक किया, ओके। और वो भी बहुत अच्छा था। वो भी काफी अच्छा था, उसमें काफी डिटेल्ड, मतलब कोर्सेज इतने डिटेल्ड, आई थिंक इतना डिटेल्ड कहीं और तो मैंने नहीं देखा है।
थैंक यू। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक्स में भी मैंने नहीं देखा है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में भी इतना डिटेल नहीं होता आप जितना डिटेल अपने नोट्स में स्लाइड्स में बना देते हैं। एक्चुअली बात यही होती है कि मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स रेफर करते हैं, तो उस वजह से क्या हम्म। होता है कि सिंगल टेक्स्ट बुक में जितना होता है वो हम ले लेते हैं, तो जनरली मतलब हम्म। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता होगा, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स का हम ट्राई करते हैं। सो बाय द वे, अभी हमारा जो यूट्यूब लाइव हुआ था, जो पहला जो सेशन था जिसमें आपने अभी ज्वाइन किया था कल जो हुआ था, तो इन दैट यू हैव आल्सो ज्वाइन एंड यू वर टॉकिंग अबाउट एआई डी सेपरेशन। आप ही बात कर रहे थे ना डी सेपरेशन यस थ्योरम। यस यस सो यस वो यस। लेक्चर्स आपने देखे थे एआई में? तो एआई में मैंने प्रेडिकेट प्रोपोजिशनल लॉजिक पूरा देखा था। सर्च मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ था हाँ आपने अदर बताया था। रिसोर्सेज से। सर्च हम्म। जो होता है सर्चिंग। और बहुत मतलब ऐसा हो रहा था कि आई थिंक लास्ट ईयर भी कंडीशनल इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चंस आए हैं। हम्म। और बहुत ट्रिकी होता है, होता बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ट्रिकी होता है। हम्म। और मैंने डी सेपरेशन पढ़ा था, ऑनलाइन भी पढ़ा था, लेकिन वो फील नहीं आ रहा था समाउ। ये प्रोफेसर मौसम का जो प्लेलिस्ट था उससे भी पढ़ा था, बट समाउ मैं नहीं कर पा रहा था। वो ट्रिक जो था हम्म। है बहुत सिंपल लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो डी सेपरेशन मैंने किया था फ्रॉम गो क्लासेस का जो अंजलि आई थिंक मैम का हाँ है। अंजलि, हाँ अंजलि मैम। सो उसमें समझाया बहुत अच्छे से, बट एक डायग्राम आपको दे मिल जाता है लास्ट में, एक इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, वो आपको याद होना चाहिए। एंड आई थिंक वो बहुत सारे मॉक टेस्ट में उस पे क्वेश्चंस आए और आई वाज एबल टू डू दैट। सो या। गॉट इट। एक्चुअली हाँ उस डायग्राम में सारे वेरिएशंस कवर हो जाते हैं, जितने भी मतलब यस पॉसिबल वेरिएशंस यस। है, कॉन्फ़िगरेशंस है। गॉट इट। ओके ओके। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली लाइक व्हाट वी वांट कि ये जो भी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं एट द एंड जो भी एस्पिरेंट देख रहा है उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, इन द सेंस लाइक उसको कुछ सीखने को मिले कि यार ऐसे प्रिपरेशन करनी है। सो so let's start from the question that okay, first question I have covered कि आपने किस order में subjects पढ़े थे, that you have already answered. The next question is that when you were completing any subject, तो उसके बाद आपको मतलब उसका रिवीजन जब करना होता था तो आपको ऐसा लगता था क्या कि आपको रिवीजन विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स करना है, या फिर आपने पहले सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए फिर रिवीजन बाद में स्टार्ट किया, या फिर ऐसा था कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया उसका फिर 1-2 महीने बाद लगा कि यार भूल रहे हैं इसको और रिवाइज करना चालू कर दिया? तो मेरे केस में मैंने सिर्फ 6 महीने प्रिपेयर किया ढंग से। तो मेरे पास टाइम ही बहुत कम था। तो ऐसा कभी होता ही नहीं था कि एक सब्जेक्ट किया और 2 महीने बाद उस पर आ रहा है। तो एक मेमोरी में रहता था। हम्म। दूसरा आई ऑब्जर्व दैट अगर मैं एक सब्जेक्ट करूँ रिवाइज करने जाऊँ तो एक फ्लो बनता है जब आप कर रहे होते हो। बट जैसे रिवीजन में स्विच करते हो वो फ्लो शिफ्ट होने में टाइम लगता है। तो व्हाट आई थॉट वाज कि मैं एक फ्लो में सब्जेक्ट्स खत्म करते जाता हूँ एंड देन इन द एंड आई विल डू द रिवीजन। सो दैट इज हाउ आई डिड। एनीवेज टाइम वाज वेरी लेस। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट्स भूल गया था। यस, काफी चीजें रिफ्रेश करनी पड़ी। काफी मेथड्स होते हैं जो आप भूल जाते हो, एल्गोरिदम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डीबीएमएस में थर्ड नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोजिशन दीपक सर उसका एक स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप्स बताते हैं। तो वो मैं भूल गया था। तो ये सब चीजें बाद में रिविजन पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने। और फिर 15 days आई डिड ओनली रिविजन। सो हम्म। गॉट इट। बट बट आई थिंक what people should do is they should revise along with preparation if they have time. हम्म। And one thing that I did not do was मैंने टेस्ट सीरीज के लिए बहुत लेट सब्सक्राइब किया था। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मुझे लगता है कि आई वुड हैव डन दिस कि व्हाइल प्रिपेयरिंग आई वुड हैव गिवन द गो क्लासेस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आल्सो अलोंग विद हम्म। प्रिपरेशन। क्योंकि दैट आई हैड डन इन द लैटर पार्ट, लास्ट क्लास में जाके मैंने सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए और मॉक टेस्ट दिए। सारे दिए थे वो आपने लास्ट में? यस यस। वाह। मैंने 9 out of 10, मतलब मेरा उसमें रैंक में नाम भी है। 9 out of 10 आई हैव गिवन द ए आई एम टी एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऑल आई हैव कंप्लीटेड इन लास्ट फ्यू डेज। वाह। सो दैट्स अमेजिंग। सो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि सी एआईएमटीज जब हम बनाते हैं तो एक हमारा डिफरेंट माइंडसेट रहता है कि इट शुड बी बैलेंस, इट शुड नॉट बी टू इजी, इट शुड नॉट बी टू टफ। वो डिफरेंट माइंडसेट्स रहता है एएमटी बनाते टाइम। लेकिन सब्जेक्ट
वाइज बनाते टाइम लाइक ऑनेस्टली वी डोंट डू एनी मर्सी, हमें लगता है कि यार जितने भी पॉसिबल वेरिएशंस हैं सब कुछ इसमें डाल दो। तो वो हमारा माइंडसेट होता है जब भी हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था सब्जेक्ट वाइज के लिए? तो आई थिंक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिल रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको अगर कहीं से जेन्युइन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिले, प्रॉपर टॉपिक टॉपिक टू टॉपिक, हाँ, टॉपिक वाइज, हाँ। जो कि बहुत अच्छे से लिस्टेड है वो क्लासेस के वेबसाइट पे। मैं उसको टेस्ट की तरह नहीं लेता, मैं उसको डीपीपी या डेली प्रॉब्लम हम्म। प्रैक्टिस या प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरह लेता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि जो जो टाइम था वो हमेशा मुझे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही पड़ जाता था। तो अच्छा, ऐसा? एक्सपीरियंस, ओके। हाँ, तो ये था। तो मैं 45 मिनट्स का 30 मिनट्स 35 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता था। नाइस। तो आई थिंक काफी चीजें ऐसी है जो आप एआईएमटीज में नहीं कवर कर सकते हो। तो वो चीज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में वो कंसेप्ट कवर हो गए। हम्म। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इतना इलाबरेट था, टॉपिक बाय टॉपिक टॉपिक बाय हाँ, टॉपिक। तो हर आई थिंक टॉपिक इट्स का एक इट्स टेस्ट। वेरी, yes, it's very important. Or one should, while preparing, they should give the subject wise test, and later while revising they should come back to the subject wise test और देखें वहां पे कहाँ पे गलती हुई। मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में बहुत गलती करता। तो फाइनल में जब 3-4 दिन बचे थे रिवीजन में, तो मैंने अपनी गलतियां जाके देखी कि मैंने कहाँ कहाँ क्या गलतियां की सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में। तो इट्स राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज इट्स ओन यूटिलिटी। Right. So, to all the viewers, I just want to clarify. So, basically, the subject-wise test that we are saying is are basically topic-wise test, as Rishabh is also saying कि topic हर topic का एक अलग टेस्ट होता था। जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा में प्रोजेक्शन एक टॉपिक है। अगर ऋषभ आपको याद हो तो प्रोजेक्शन का भी एक अलग टेस्ट था। सो हर टॉपिक का लाइक हमने ट्राई किया कि अगर एक छोटा सा भी टॉपिक है और मुझे ऐसा लगा था कि प्रोजेक्शन पर्टिकुलरली एक प्रोजेक्शन मैट्रिसेस एक मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लीनियर अलजेब्रा का, तो मैंने उसका अलग टेस्ट डाला था। या फिर कोई भी टॉपिक जो हमें लगता था कि यार ये मतलब इसका एक अलग टेस्ट होना चाहिए, तो उसका एक अलग ही टेस्ट था। हर टॉपिक का ऑलमोस्ट अलग हमने टेस्ट दिया था। सो लाइक सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन एसवीडी का एक अलग टेस्ट यस, था, तो यस। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स का एक अलग टेस्ट था। सो इट्स रियली अमेजिंग टू हियर कि आपने सारे टेस्ट दिए। यस सर, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। तो मैंने साथ में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए नहीं थे, और मैं खुद से प्रिपेयर कर रहा था, तो क्वेश्चंस अलग अलग सोर्सेज से किए। बट प्रोजेक्शन आपने अभी मेंशन किया तो मुझे भी याद आया, प्रोजेक्शन के मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया था। ओके। मैंने टॉपिक समझ लिया था, कंसेप्ट समझ लिया था, बट प्रोजेक्शन का एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं किया था। और वो मौका मिला मुझे प्रोजेक्शन का जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है उससे, कि ठीक है आपने कंसेप्ट तो पता है बट क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे हम्म। करना है, वो मुझे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से मिला। सो कुछ चीजों में तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऐसा था कि वही मेरा सोर्स ऑफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस था। हम्म। राइट। एंड एक्चुअली उस टॉपिक वाइज टेस्ट में मैंने मुझे जहाँ तक याद है कि आपको अगर थोड़ा याद आ रहा हो कि प्रोजेक्शन मैट्रिसेस या प्रोजेक्शन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल वेरिएशंस हैं वो सारे कवर कर दिए। मतलब मैं खुद सोच रहा था कि यार अभी कुछ बचा है क्या मतलब इसमें कवर करने के लिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से पिक किए थे और वो यस, सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो जाए प्रोजेक्शन से रिलेटेड। यस। आई थिंक एमआईटी, ये सब से आप क्वेश्चंस लेके आते हाँ। हैं। राइट। और ना सिर्फ आप सारे वेरिएशंस कवर करते हैं, उसके दो तीन और, मतलब वही चीज दो हाँ। तीन बार तो अलग अलग टेस्ट में आता है। तो अगर आप भूल भी जाओ तो एक बार वो हो जाता है, आपका रिवीजन हो जाता है। तो आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाता है, ये एक चीज है। राइट। ट्रू। आप इम्बाइब कर लेते हो उस कंसेप्ट को पूरी तरह से। गॉट इट। Okay. So, as we are talking about test and all, so when you were attempting test तो ऐसा होता होगा कि आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं, लाइक AIMT आपने अटेम्प्ट किया और होता होगा कि किसी किसी AIMT में कम मार्क्स आ रहे हैं। सो एट दैट टाइम लाइक आपका क्या रिएक्शन रहता था कि यार मतलब प्रिपरेशन इस साल तो अच्छी नहीं हो रही है, ऐसा कुछ होके डिमोटिवेशन आता था, या फिर आप अपने आप को मतलब हील अप कर लेते थे? सो आई थिंक पहला एआईएमटी जब मैंने दिया, मैंने काफी डिले कर दिया था। हम्म। मैंने बहुत लास्ट के 20 डेज में मैंने मॉक्स देना चालू किया। फॉर सम रीजन आई हैड डिलेड इट, और थोड़ा सा पैनिक सा थोड़ा सा था कि अब देना है किसी भी तरह वरना नहीं होगा। हम्म। तो पहला जो एआईएमटी मैंने दिया, एआईएमटी 1, वो हम्म। ऑलरेडी उसका डेट पास हो चुका था, मैंने वो होने के बाद दिया था।
हम्म। तो उसमें मुझे आई गॉट आई थिंक थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ रैंक आ गई। वाह, नाइस। तो बड़ी खुशी हुई, मुझे लगा यार चलो ये तो, मैं तो डर रहा था, इतना डिले प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, अच्छे हाँ। मार्क्स आ गए। सो उससे फिर एक कॉन्फिडेंस मिला, और कॉन्फिडेंस ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी मिल गया, क्योंकि फिर नेक्स्ट टेस्ट में मेरे कम आ गए। हम्म। बट ओके। कम आने के बावजूद मैं कभी बहुत अच्छा रैंक नहीं आया, मुझे कभी टॉप 5 एक दो बार ही आया, टॉप 10 में रहता था मैं। वाह, बट नहीं, कभी टॉप 10 बहुत अच्छा ही है। ऑलरेडी। हाँ, मुझे याद है तो आपका नाम टॉप 10 में आता था, हाँ। तो कभी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा नहीं था, बट हाँ ये था। तो जब एआईएमडी में खराब आ जाते थे, तो मुझे ये तो पता था कि प्रेपरेशन है अप टू द मार्क, कंसेप्ट पता है, तो गलती क्या हो रही है। तो अगर 3 घंटे का एआईएमटी है, तो मैं बैठ के 4 घंटे उसका एनालिसिस करता था। तो मैं देखता था कि गलतियां कहाँ हो रही है, और एआईएमटी से मुझे पता चला कि सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं वहां पे, बहुत ज्यादा मतलब मार्क्स चले जा रहे हैं। एक चीज पता चली। अ, दूसरी चीज, एआईएमटी में, एआईएमटी की वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया था। तो हम्म। हमेशा ऐसा होता था कि मतलब पूरा पेपर तो अटेम्प्ट हो जाता था, 10 मिनट भी बच जाते थे मेरे। तो वो एक था कि हाँ चलो टाइम मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है, बट सिली मिस्टेक्स बहुत हो रहे थे, ये पता चला। तो ये तो पता था कि आता है, टॉप में रैंक आ रहा है, तो गड़बड़ कुछ नहीं है, बस चीज़ों को फाइन ट्यून करना है। सो कुछ कुछ टेस्ट में खराब मार्क्स भी आए, आई थिंक। कुछ इजी टेस्ट में मुझे 60 से कम आए, जबकि टॉपर के 83 84 ऐसे कुछ है। तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता था। बट फिर जब एनालिसिस किया तो पता चला कि ऐसा नहीं कि आता नहीं है, ऐसा है हम्म। कि गलतियां बहुत हो रही हैं। तो डिमोटिवेशन उतना नहीं होता। वेन यू नो नाइस। यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन, तो डिमोटिवेशन नहीं होगा, बस आपको स्ट्रैटेजी अपनी फाइन ट्यून करनी ऑसम, दैट्स वेल सेड। सो बेसिकली यू वर कॉन्फिडेंट कि आपने मेहनत की है, यू वर कॉन्फिडेंट अबाउट योर हार्ड वर्क, कि है। यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड इट इज गेटिंग इनटू रिजल्ट्स। इट इज जस्ट दैट दिस टेस्ट वाज नॉट ऑफ, इट वाज नॉट ऑफ माई, इट वाज नॉट माई डे प्रॉब्ली, है ना। यस आपने यस। ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर दी, एंड नथिंग मोर देन दैट, बस इतना ही था कि यस हाँ, कि आपने यहाँ पे थोड़ी ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर दी, बट हाँ, इतना डीमोटिवेशन आपको नहीं होता था जैसा आप बोल रहे हैं। यस। ओके। सो आपने सिली मिस्टेक्स रिड्यूस कैसे की, क्योंकि सिली मिस्टेक्स तो होती है हर बार, और हर बार आप सोचते होगे कि यार अब की बार ये मिस्टेक नहीं करनी है, तो किस टाइप से आपने रिड्यूस की उनको? सिली मिस्टेक्स तो पहले तो बहुत ही ज्यादा कर दी। फिर लगा मतलब कंसिस्टेंटली, मतलब वो नंबर जो है सिली मिस्टेक्स का वो कम ही नहीं हो रहा था। हम्म। तो थोड़ा सा मैं बैठा, थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट किया, और मुझे पता चला कि मैं बहुत फास्ट क्वेश्चन रीडिंग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट डेटा मिस हो जा रहा है। अच्छा, फिर वो कॉन्शियसली उसको मैंने चेंज करने की कोशिश की, थोड़ा पेशेंटली क्वेश्चन रीड करने की कोशिश की। आ, फिर देखा कि क्वेश्चंस ठीक रीड कर रहा हूँ, ऑप्शंस बहुत फास्ट रीड कर दे रहा हूँ, तो वो मैंने कॉन्शियसली चेंज की, ये इसलिए मिस्टेक हो रहा था। फिर देखा कि जब मैं सोल्यूशन, व्हेन आई एम राइटिंग द सोल्यूशन इन द राइटिंग पैड, आई एम स्किपिंग सर्टेन स्टेप्स, हम्म। जिसकी वजह से दिक्कत हो जा रही है। आई एम स्किपिंग, वो एफर्ट बचाने के लिए मैं स्किप कर दे रहा हूँ। तो वो मैंने फ्लो को ब्रेक करना, जो सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग का फ्लो था वो ब्रेक हो रहा था, तो वो मैंने रेक्टिफाई किया कि ओके, ये अब मुझे एक फ्लो बना के सॉल्व करना, स्टेप स्किप नहीं करना। कभी कभी क्या होता था कि क्वेश्चन पढ़ा और फटाक से सोल्यूशन की तरफ लिखना चालू कर दिया, वो एक गलती होती थी, वो नहीं करना होता था। फिर वो चेंज किया, क्वेश्चंस ढंग से पढ़े, बैठ के फिर सोचा कि क्या ये कहाँ जाना चाहता है, फिर डिटरमाइन किया, फिर वो क्वेश्चन से आंसर तक का एक फ्लो पूरा माइंड में बनाया, और उसको ये करना चालू किया। तो ये सब चीजें नहीं हो रही थी शुरू में। मतलब पहला एआईएमटी तो बहुत आसान हो गया था, बट उसके बाद जब आया तो पता, असली असलियत पता चली। तो ये सब चार पांच चीजें, मतलब कंसिस्टेंटली इस पे काम किया, बहुत ज्यादा ये हो रहा था, एंड ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन ये सब चीजें नहीं हुई, हम्म। फॉर्चुनेटली। आई थिंक मैंने सिर्फ एक ही सिले मिस्टेक किया था। वो एक एमएसक्यू था, बहुत ही ओके। और दूसरा मैंने एक, सिर्फ एक ही मेरा नेगेटिव गया है, ओके, 0.33। 2/3, 2/3। टू, ओके, 0.66, ओके। यस। सो ओनली वन नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्टेड एंड वन सिली मिस्टेक जो मैंने गॉट एनालिसिस इट। किया।
तो ये फायदा मुझे बाद में वो एग्जाम में आया। डेफिनेटली। एक्चुअली जब आप इतना मेहनत करते हो और जब इतना कंसेप्चुअल ग्रैप्स आ जाती है और जब आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो, इतने एएमटीज दे लेते हो, तो ऑटोमेटिकली ये होता ही है कि मेहनत तो रिफ्लेक्ट होगी ही। आपने अगर मेहनत किया तो वो तो दिखेगी इन सम फॉर्म। गॉट योर पॉइंट। यस। सो और हाँ। हाँ, अरे, सबसे अच्छी चीज थी कि एआईएमटी बैक टू बैक आ रहे थे, तो हाँ। ऐसा था कि मुझे मुझे मार्क्स कभी आते थे कभी नहीं आते थे, लेकिन अटेम्प्ट करने में बड़ा मजा आने लग गया मुझे। तो आई यूज टू लुक अप टू इट। लास्ट लास्ट में ऐसा हो गया कि टाइम ही नहीं बचा, लेकिन एक एआईएमटी बच गया। तो तो एआईएमटी देने में बड़ा मजा आता था, मार्क्स आए नहीं आए, काफी कुछ पता चलता था उससे। और फिर थोड़ा सा ये भी फ्रस्ट्रेशन भी होता था कि यार फिर वही सिली मिस्टेक, फिर वही सिली मिस्टेक। हाँ, तो वो फिर बार बार, एक्चुअली एक कोड होता है कि सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो गलतियां कम नहीं करते, वो गलतियां जल्दी कर देते हैं, ज्यादा गलतियां बहुत जल्दी कर देते हैं। नाइस। हाँ, मैंने भी ये सुना है। हाँ, सक्सेसफुल पीपल कम गलतियां नहीं करते, वो जो ज्यादा गलतियां है वो कम टाइम में कर लेते हैं। और फिर वो हाँ, उस फेज में आ जाते हैं जहाँ पे वो, तो मैंने ये चीज मुझे बहुत अच्छे से दिमाग में थी। तो तो ये था मुझे कि मुझे मॉक टेस्ट देना ही है और गलतियां करना है जो भी है वो, डेलिबरेटली नहीं करना है, हाँ, बट देखना है कि ऑब्वियसली, हाँ। कितनी गलतियां हो रही हैं। राइट। और दैट इज व्हाट हेल्प, बहुत सारी गलती की, और तब जाके मेन एग्जाम में जो है गलतियां नहीं हाँ, हुई। जो आप बोल रहे हैं ना, ज्यादा गलतियां कम टाइम में, वो भी, वो विदाउट हार्ड वर्क इट इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। यस, क्योंकि ज्यादा गलतियां करने के लिए ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ना। यस, वो भी यस, कम यस। टाइम में। राइट। सो कमिंग टू AIMTs, लाइक एज यू आर सेइंग कि आप AIMT के लिए यू यूज टू लुक अप एट AIMTs कि यार, या ये अभी AIMT होगा। सो आई वांट टू नो योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट टू नो कि यार AIMT अभी फोर नहीं, क्योंकि हमने पहले फोर अनाउंस किए थे एंड देन लेटर ऑन वी वेंट ऑन एंड वी सेड ओके इट विल बी 7 AIMTs, है ना। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट टू नो कि यार हाँ चलो 7 AIMTs होने वाले हैं, तो मतलब मजा आएगा, ऐसा कुछ सोचा था आपने? चलो, अच्छा है। सर, मैंने मैंने तो जब एआईएमटीज देना चालू किया तो काफी लेट हो गया था। ओके। तो आपने एक एक एआईएमटीज तक किया था, बट मैंने वो सारे एआईएमटीज अटेम्प्ट किए, एंड बाय द टाइम आई वाज रेडी फॉर द नेक्स्ट, वो एआईएमटी आ चुका था। तो ओके। वो मेरे साथ वो हुआ ही नहीं कि बहुत गैप आया और अनाउंस हुआ, मेरे साथ एक के बाद एक के बाद एक आ रहे और मैं करते जा रहा। तो एक आपने दिन में लाइव मैंने दिए दो, थे क्या? लाइव नहीं दिए थे? नहीं नहीं, मैंने आई थिंक ओके। एक या दो ही लाइव दिए थे। बाकी गॉट। मैंने आफ्टर, हाँ मैंने दो या तीन लाइव दिए थे मुझे याद है। हम्म। और बाकी मैंने आफ्टर द टाइम पास मैंने दिया था। और एक दिन तो मैंने दो एआईएमटीज भी दिए। ओ। मतलब सुबह के टाइम आई थिंक एआईएमटी 7 समथिंग दिया, और शाम के टाइम एआईएमटी 1 दे दिया, क्योंकि एआईएमटी 7 में मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो फिर एक रहता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, चलो अभी से एआईएमटी में रेक्टिफाई करते हैं। तो आई थिंक एक दिन ऐसा था कि मैंने दो एआईएमटीज दिए। ग्रेट। ओके। ओके। So, how was your overall experience in this GATE journey? Like, not just because, not just about the Go classes, but in general, कि कैसा एक्सपीरियंस रहा गेट का प्रिपरेशन, गेट डीए का प्रिपरेशन आपने किया? सर, प्रिपरेशन तो काफी इंटेंस रहा। अभी जब मैं कर रहा था तब उतना पता नहीं चलता था, बट नाउ दैट आई रिफ्लेक्ट, अब जब हाँ। कुछ कर नहीं रहे हैं, एकदम आराम आ गया है सब, तब मुझे ध्यान आता है यार उस समय मैं कितना प्रोडक्टिव हो गया था। लास्ट के मैंने कितने सारे प्लेलिस्ट कितने कम टाइम में स्क्वीज करके 2x पे करके मैंने खत्म किया है, कि मुझे एक ऐसा हो गया था कि गो क्लासेस में कुछ ऐसा सीखने मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। तो जो कि इवेंचुअली टर्न्ड आउट टू बी लाइक दैट। थैंक यू। तो काफी इंटेंस था प्रेपरेशन। तभी पता नहीं चला, तभी लगा कि हाँ हंसते खेलते हो गया, बट अब पता चल रहा है जब ना, वो व्हेन यू सोचते हैं लुक कि बैक, हाँ। या। सो ऑन एवरेज कितने आवर्स आप, अगर मैं आपसे पूछूंगी, और ऑन एवरेज कितने आवर्स आप पढ़ते होंगे? तो मेरा बहुत वेरिएशन था, बट आई वुड से मैं बहुत कंसिस्टेंट था, क्योंकि हम्म। कई बार ऐसा होता था कि 100 में से 15-20 दिन ऐसे आ जाते थे कि कुछ बाहर काम पड़ जाता था या समथिंग यूज टू हैपन, नहीं हो पाती थी। बट उस दिन भी घर आके कुछ टाइम बचा रहता था, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लिया। कुछ दिन टाइम मिलता था तो ट्राई करता था कि 7 to 8 आवर्स एवरी डे कर सकूं। हम्म। कभी कभी 10 आवर्स भी
किया था मैंने, और कुछ डेज पे मैंने 13 आवर्स 14 आवर्स भी किया है। तो काफी वेरिएंस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप एवरेज पूछोगे तो मीन मेरा होगा 7 to 8 आवर्स, 7 to 7 वाह। हाफ 8 आवर्स। बट काफी वेरिएशन था पर डे वो। मतलब कंसिस्टेंट आई वॉज वेरी। राइट। हाँ, मेरा फोकस कंसिस्टेंट था कि गेट एग्जाम एक फोकस था, लेकिन वेरी वेरी होते रहे। दैट इज, आई थिंक दैट इज लाइफ, मतलब वो होगा ही, यस। दैट इज वेरी यस। नेचुरल। अगर आप, लेकिन द ओनली की इज दैट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि आपको करना ही यस। है। हाँ, यस। अप्स डाउन तो आएंगे, किसी दिन कुछ काम आ जाएगा, किसी दिन कुछ फैमिली में कुछ काम आ जाएगा, किसी दिन कुछ पर्सनल काम आ जाएगा, किसी दिन कुछ और हो जाएगा। बट हाँ, जब भी, सो बेसिकली यू आर सेइंग कि जब भी आपको टाइम मिलता था आप पढ़ते थे। दैट यस। इज यस। कंक्लूजन। या ऐसा नहीं हुआ कि आज का पूरा दिन चला गया, अब तक पढ़ाई नहीं हुई, छोड़ो अभी बाकी क्या करें पढ़ के। हाँ। तो वैसे ही टाइम कम था तो लगता था यार जो भी मिलता है टाइम कर लो बस। तो राइट। उस वजह से मैंने किसी किसी दिन 2 2 3 3 घंटे पढ़ के भी काफी प्रोग्रेस की है मैंने। गॉट इट। सो ऋषभ, लाइक देर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लगता है, एक्चुअली क्योंकि जब पहली बार प्रिपरेशन चालू करते हैं ना, उनको नहीं पता होता कि गेट क्या है, मतलब गेट कितना डेप्थ में होना चाहिए, या फिर दे डोंट नो मच अबाउट गेट जब एज अ बिगनर व्हेन यू स्टार्ट प्रिपरेशन। सो उनको ऐसा लगता है कि यार ठीक है, ये पीवाईक्यू में वो पीवाईक्यू देख लेते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये पीवाईक्यू में ऐसा पूछा है, ये पूछा है। सो बेसिकली कई स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि सारे, पर कई स्टूडेंट्स को लगता है कि थोड़ा सा ऊपर से पढ़ के या फिर थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड पढ़ के गेट निकल जाएगा। सो इज दिस ट्रू कि आपको, मतलब केवल फॉर्मूला पढ़ के या फिर ऊपर से पढ़ के क्या गेट निकल सकता है? सर फॉर्मूला पढ़ के आपका मुश्किल से 30% पेपर निकलेगा। तो मुझे तो यही लगा, मुझे तो नहीं लगा। मैंने तो जेई भी दिया है, वो तो काफी टफ होता है। मुझे ऐसा नहीं ट्रू। लगा कभी भी, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार अच्छा फॉर्मूला पता है और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और हो जाएगा। हम्म। मॉक टेस्ट में भी और एक्चुअल एग्जाम में भी यू हैड टू डू सम एफर्ट, एक फ्लो ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है। तो फॉर्मूला पढ़ के तो नहीं होगा, एटलीस्ट नाउ। सो एटलीस्ट डीए में मुझे पता है डेफिनेटली नो। गॉट इट। And also see, since you already have implemented face recognition and other stuff in machine learning or deep learning, so you already had interest. But is this really necessary? I mean, see, your case is different, but is this really necessary to know ML, or to have to do implementation even before start preparation? So can anyone who has not seen anything in implementation, not seen anything in machine learning, can those kind of people start preparation, or can they get a good rank? आई थिंक डेफिनेटली। द थिंग इज, इसके अंडरलाइन ये है कि आपको पैशन होना चाहिए मशीन लर्निंग का, Hmm. एआई का। अगर आपको पैशन नहीं है और आप सिंपली जाके कर रहे हो, अगर इंटरेस्ट आ जाए तो ठीक है, मजा आने लग जाए तो ठीक है, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। पैशन होना चाहिए। मैथमेटिक्स, मशीन लर्निंग इज ऑल मैथमेटिक्स। आपको कोई वहां पे एल्गोरिदम नहीं देंगे ट्रेन करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स आपको, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स। सो मशीन लर्निंग इज नॉट इवन कंप्यूटर साइंस। जो गेट का मशीन लर्निंग इज प्योर मैथमेटिक्स इन अ सर्टेन वे। Right. और ऐसा मैथमेटिक्स भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इट्स सिंपल ज्योमेट्री बेस्ड मैथमेटिक्स है। Right. सिंपल फार्मूलाज है। तो आई थिंक एनीवन कैन डू। उसको जरूरी नहीं है कि कभी उसने कोई कोड लिखा हो एमएल पे, बट एक इंटरेस्ट होना चाहिए। कुछ बैकग्राउंड हो तो बेटर है। क्या कर रहे हो वो पता होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, वरना तो मुश्किल है। पैशन नहीं Got है it. अगर। हाँ, आपने एक लाइन और बोली थी अभी कि अगर पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ जाए तो भी अच्छा ही है। यस। यस, राइट। पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ जाए, कि पढ़ते पढ़ते लगने लगे हाँ यार ये तो बहुत सही है। हाँ। दैट ऑल्सो हैज हैपेंड विद अ फ्यू पीपल कि उन्होंने मैनी पढ़ा पीपल। है, उनको लगा यार हाँ, क्योंकि इट्स वेरी लॉजिकल एंड इट अपील्स टू योर लॉजिक। हम्म। तो लॉजिक है तो एक फ्लो बन जाता है, लॉजिक आपको समझ आ जाता है, तो फिर लगता है कि हाँ यार चलो ये सही है। Right, right. Got your point. So, actually, it has happened with many other toppers also कि ML के बारे में जनरली अभी, मतलब एट दिस
एट दीज ईयर्स, मतलब अभी इतने इतना अंडरग्रेड लेवल पे लोगों को इन्फॉर्मेशन या फिर इतना वो एक्सप्लोर नहीं करते हैं. सो विद मैनी अदर गेट टॉपर्स इट ऑल्सो हैपन कि उनको पढ़ने के बाद इंटरेस्ट आया, एंड स्पेशली लाइक गो क्लासेस में हमें तो कॉमन फीडबैक यही मिलता है कि पहले लग रहा था कि यार कितना देखना है, नहीं देखूं, इतने दो चार लेक्चर देख लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन जब पढ़ने के बाद उनको लगता है कि नहीं यार पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा. अगर आपको कोई आइडिया नहीं है और आपको इंटरेस्ट बनाना है तो आप गो क्लासेस का कर लो तो इंटरेस्ट बन जाएगा। थैंक यू. उसमें गो क्लासेस में तो आपको कुछ भी किसी में भी इंटरेस्ट बन जाएगा। एक्चुअली हमारा हाँ। लीनियर अलजेब्रा कोर्स फ्री है, तो अगर किसी को ऐसा है कि बस चेक करना है कि कैसा गेट डीए होता है या गेट डीए का मैथमेटिक्स कैसा होता है, तो आप लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट कर सकते हो और हमारे लेक्चर्स एक बार प्रेफर कर सकते हो. आप देख के देखो, अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट आ रहा है देन यू शुड कंटिन्यू इन गेट डीए. अगर आपने ऑलरेडी कंटिन्यू कर लिया, ऑलरेडी सोच चुके हो, इट इज वेल एंड गुड, बट स्टिल इफ यू आर इन डाउट तो आप लीनियर अलजेब्रा कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हो. आई एम जस्ट टेलिंग टू अदर व्यूअर्स. आई थिंक डेफिनेटली करना ही चाहिए। ये कुछ आप किसी भी रिसोर्स से करो, बट गो क्लासेस का लीनियर अलजेब्रा यू मस्ट टू, आई थैंक यू. बिलीव। थैंक यू सो मच. Okay, so I think we have covered almost all of the points. Now, I will just request you to give some advice to future gate aspirants जो अभी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, और हो सकता है कि उनको कुछ आइडिया हो लाइक गेट का, हो सकता है गेट डीए का कुछ भी आइडिया नहीं हो. सो इन बोथ द केसेस लाइक वन मैसेज फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट that what you would like to give. So please give a message to all of the future aspirants. Now I will just turn off my video. Once your message is over, I will just turn on again. Okay. So my message would be that uh, preparing for this exam and for even any other exam, your focus, you should focus on the right things, you shouldn't focus on the wrong things कि किसी का, मेरे बगल वाले का ज्यादा मार्क्स आ रहा है, मेरा कम आ रहा है, और मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, या एआईएमटीज में या जो मॉक टेस्ट है उसमें मार्क्स खराब आ रहे हैं, तो मेन एग्जाम में भी मार्क्स खराब आएगा। यू शुड फोकस ऑन द राइट थिंग्स कि व्हाट इज इट दैट विल वर्क और आपको रिजल्ट आने में हेल्प करेगा। सो कंसेप्ट क्लैरिटी, सिलेबस की पूरी समझ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई वुड से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले करना चाहिए इवन बिफोर प्रिपेयरिंग, बिकॉज वन गेट्स द आइडिया ऑफ व्हाट डज द गेट एग्जामिनर दे वांट। कंसेप्ट क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना, उसके बाद रिवीजन, टाइमली रिवीजन, उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल इज मॉक टेस्ट। नो मैटर व्हाट, आपको कितना, यू माइट हैव published research papers in machine learning, AI, it doesn't matter. If you have not done the mock test, it will not work. Mock tests help you to develop a psychology. Knowledge you already have, but they help you to develop a mindset, a psychology for the actual examination. Uh, it helps you to develop time management skills, accuracy. So mock test is the most important piece of this puzzle, apart from obviously concept prepare karna, revision and all that. So these are 3 4 things that are very important. And yes, mock test sirf dena kafi nahi hai, it's not enough. Mock test analysis is much more important, equally important. So mock test में mock test attempt and mock test analysis आ जाता है. And from anything apart from this, you don't have to focus. You don't have to focus कि आपके 5 फ्रेंड्स हैं, उनका बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपका नहीं आ रहा, या आपका एआईएमटी में स्कोर खराब आ रहा है, या ये है वो है, या फिर नहीं गेट क्लियर हुआ तो क्या होगा, मैंने जॉब छोड़ दी है, क्या होगा, ये पैनिक थिंग्स। इफ यू दिस इज ओनली गोइंग टू ड्रेन योर फोकसिंग एनर्जी, फोकसिंग पावर। इट इज नॉट गोइंग टू add any benefit. So if you focus on the right things, it will happen. It will happen. I would say it will happen effortlessly. मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद फील होगा that you are not working hard. It will happen very effortlessly if you focus on the right things. So that would be my message for GATE aspirants. Thank you so much, Rishabh. It was really inspiring and really very informative. Thank you so much. And also the overall conversation I really enjoyed. So thank you so much for joining in. Thank you, Sachin sir. Thank you so much. So is there anything which you like to share, and probably I haven't asked that kind of question?
Um, I would like to share. I'm little ashamed of this थोड़ा सा, but still I would share. ओके। जब ये आई थिंक एक साल पहले मैंने कोई आपका कोई वीडियो देखा था गो क्लासेस कंप्लीट कोर्स पे। तो मुझे लगा था यार इतना महंगा कोर्स है, दे बेसिकली दे जस्ट वांट टू अर्न मनी आउट ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैंने जाके कुछ कमेंट मैंने कर दिया था। आई वुडेंट से दैट कमेंट क्योंकि नहीं आई नहीं, एम हाँ नॉट वेरी चलेगा। प्राउड ऑफ, नो वेरी प्राउड प्रॉब्लम। ऑफ इट। बट जब लेटर, बहुत लेटर जाके मैंने जब मैंने किया खुद से एंड आई गॉट दिस, मुझे खुद पता चला क्या ये है। देन आई वेंट बैक और वो कमेंट मैंने डिलीट किया। ओह। और और ऑफ लेटली जब टेलीग्राम ग्रुप्स पे बहुत सारी क्वेरीज आते हैं, तो लोग पूछते हैं कि मुझे एक सिंपल फॉर्मूला बताओ कि, तो मैं बोलता हूँ कोई सिंपल फॉर्मूला है नहीं, बट आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप गो क्लासेस से शुरू करिए। क्योंकि आई नो इवेंचुअली इफ यू डू गो क्लासेस कोर्स यू वुड नॉट रिक्वायर टू डू एनीथिंग एल्स। सो स्टार्ट ही, अगर स्टार्ट ही आपने सही डायरेक्शन में की है, तो you will reach the destination in a fastest possible time. So that is the single, if they ask me preparation tip in one sentence or one word, this is what I say: थैंक यू go सो मच सर। classes. Thank you so much for your great message and also the last tip that you have shared. So I think ऐसा होता है इनिशियली कि हम कुछ प्री माइंडसेट लेके चलते हैं कि यार हाँ मतलब ये Yes, बेकार ही होगा, तो हम कमेंट वगैरह कर देते हैं, इट्स नेचुरल। सो थैंक्स फॉर yes. शेयरिंग दैट आल्सो। थैंक यू सो मच ऋषभ।